Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine along with your families. So, today our topic is chapter number 5 of your English book, class 6, and page number is 53. Okay, turn page number 53 of your English book, class 6. Yes, let us स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 33 जो है आपका अपनी बुक का जो इंग्लिश बुक है वो टर्न कीजिए। ओके, नाउ मैं स्टार्ट करूँगी। मैं पहले रीडिंग इसकी करूँगी। ये नया चैप्टर है आपका और इसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूँगी और उसके बाद मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग भी बताऊँगी और साथ साथ आप वो नोट डाउन करेंगे। ओके, लेट अस बिगिन। आवर स्टेट इज़ फेमस फॉर मनी थिंग्स। स्टडी द फॉलोइंग एंड gather information about them. Gardens, wood carving, arts and handicrafts, rivers, oblique lakes, winter sports, scenic beauty, hospitality, Kashmiri cuisine called Wazwan, temples. Let us read. नाउ अब हम स्टार्ट करते रीडिंग। हु डज नॉट नो अबाउट द वैली ऑफ कश्मीर, अ ब्यूटिफुल प्लेस इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। इट इज़ कॉल्ड पैराडाइज ऑन अर्थ। इट इज़ फेमस फॉर नॉट ओनली फॉर its scenic beauty but also for its handicrafts. They have won name and fame throughout the world. Among these handicrafts is the Kashmiri shawl, a fine and light wrapping that keeps you warm in winter and gives elegance to your personality. Kashmir has been producing shawls from centuries now. Franz Bernier was the first European who visited Kashmir in 1664 and who wrote about the softness and delicacy of this local fabric. These shawls, turn page number now 54. These shawls are woven on handlooms by men and are about 2 meters long and 1.25 meters wide. Bernier talks about two types of shawls, one made with local fine wool and the other from the soft underfleece hairs of the breast of the wild goat, the kill goat. The latter much more expensive. In winters, the wild goat found in the high altitudes of the Tibet and Central Asia grow a layer of soft hair under their normal coarse hair. This helps them survive in cold at high altitudes. When spring comes, these goats shed off their extra layer of rubbing their body against bushes and rocks. Now there are farms where the goats are reared and the wool is collected. The local people gather this fleece called fam in Kashmiri and sell in the Kashmir Valley. We have now farms where the kill goats are reared and the wool is collected on a large scale. In Kashmir and other areas, local goats also produce wool and are common to remove it, but the shawl made from this wool are inferior in quality to those made from wool got from the wild goat. Okay, I have done the reading of these two paragraphs. Now we start explaining. I am starting to going to explain it और आप ध्यान से जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें आएंगे उनकी मीनिंग जो है आप समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आवर स्टेट इज़ फेमस फॉर मैनी थिंग्स। हमारा स्टेट जो है, जो कि आज अब स्टेट नहीं रहा, यूटी के नाम से जाना जाता है, JNK, इट इज़ फेमस फॉर मैनी थिंग्स। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कश्मीरी शॉल की, तो जाहिर सी बात है ये हम कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कश्मीर जो है इट इज़ फेमस फॉर मैनी थिंग्स। फेमस मीन्स मशहूर। कश्मीर जो है ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो है दुनिया भर में मशहूर है।
स्टडी द फॉलोइंग एंड गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट दैम। कहते हैं नीचे दी गई है कुछ चीज़ें जिनके बारे में कश्मीर जो है दुनिया भर में मशहूर है, उनके बारे में आप पढ़िए और इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कीजिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि इन चीज़ों से किस तरह से जो है कश्मीर जो है फेमस है। फर्स्टली इन्होंने दिया गार्डन्स। आपको पता है कश्मीर जो है बागों की वजह से, इसको पैराडाइज ऑन अर्थ भी कहा जाता है, अपने बागों की वजह से जो है बहुत मशहूर है। वुड कार्विंग, जो लकड़ी का काम यहाँ पे होता है, उसके लिए भी मशहूर है। आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से काम किए जाते हैं, आप देख रहे हो कालीन बनाते हैं या बाकी हैंडीक्राफ्ट्स के वर्क्स आते हैं, सूट्स आप देखते हो, कर्टन्स आप देखते हो, या हाथ से जितने भी आर्ट्स जो हैं उनको हैंडीक्राफ्ट्स कहते हैं, उनसे भी उनकी वजह से भी मशहूर है। रिवर एंड लेक्स आपको पता ही है, डल की वजह से या मानसबल लेक की वजह से जो है कश्मीर है मशहूर है, और रिवर्स की वजह से भी मशहूर है। विंटर स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स में आता है जैसे स्कीइंग आप गुलमर्ग में करते हो, देखते हो ना विंटर्स में, तो उसकी वजह से भी मशहूर। सीनिक ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी की बात तो क्या कहनी, दुनिया भर के लोग इसको पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं। यहाँ पर सैर तफरी करने के लिए आते हैं, तो सीनिक ब्यूटी के लिए भी ये बहुत मशहूर है। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मीन्स यहाँ जो मेहमान नवाजी हम लोगों की करते हैं उस लिए भी मशहूर है। बाहर उतनी मेहमान नवाजी नहीं होती जितनी हमारी कश्मीर में होती है, उसके लिए भी हम दुनिया भर में मशहूर हैं। कश्मीरी कुजीन, कश्मीरी कुजीन मीन्स वाजवान। कुजीन का मतलब है वाजवान, जो एक जगह पर्टिकुलर जगह का कोई पर्टिकुलर डिश होता है उसको हम कुजीन वहाँ का कहते हैं। तो यहाँ का जो है पर्टिकुलर डिश जो वाजवान जो है बहुत मशहूर है। और टेम्पल्स, टेम्पल्स यहाँ पे हम ज़्यादातर टेम्पल्स की बात नहीं करेंगे, हम लिखें यहाँ पे कहेंगे श्राइनस। यहाँ पे ज़्यादातर टेम्पल्स से ज़्यादा मशहूर यहाँ पे श्राइनस है, क्योंकि कश्मीर जो है इसको ऋषिवा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऋषियों के जो है आस्थान हैं और टेम्पल्स भी बहुत सारे, जिनकी वजह से कश्मीर जो है दुनिया भर में मशहूर है। तो अब हम रीडिंग के पोर्शन में चलते हैं। कहते हैं हु डज़ नॉट नो अबाउट द वैली ऑफ कश्मीर। ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं जिसको कश्मीर के बारे में कुछ पता नहीं होगा। सबको पता है कश्मीर जो है, जब कश्मीर किसी को भी कश्मीर के बारे में पूछेंगे, ये बहुत ए ब्यूटीफुल प्लेस इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के नॉर्थ साइड में आप देख रहे हो, हिंदुस्तान का ताज जो है ये कश्मीर है। इट इज़ कॉल्ड पैराडाइज ऑन अर्थ। इसको जन्नत का बाग जो है ज़मीन पे कहते हैं, ये जन्नत का टुकड़ा है। पैराडाइज ऑन अर्थ, ये जन्नत है, ज़मीन जो है ये जन्नत है कहाँ पे, सॉरी कश्मीर जो है ये जन्नत है कहाँ पे, ज़मीन पे। तो इस तरह से पैराडाइज ऑन अर्थ भी कहा जाता है। इट इज़ फेमस फॉर नॉट ओनली द इट्स सीनिक ब्यूटी, ये सिर्फ इस सीनरी की वजह से, सीनिक ब्यूटी की वजह से दुनिया भर में मशहूर नहीं है कश्मीर, बट इट इज़ आल्सो फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। ये अब मशहूर हैंडीक्राफ्ट जो हाथ का काम यहाँ पे किया जाता है, हैंडीक्राफ्ट वर्क होता है, उसकी वजह से इतना मशहूर है कि दुनिया भर में इसने लोगों के दिल जीते हैं। दैट हैव वन द नेम एंड फैम ब्रॉट ओवर द वर्ल्ड। इसकी वजह से, अपने हैंडीक्राफ्ट शॉल्स की वजह से, अपने हैंडीक्राफ्ट्स की कालीनों की वजह से, अपने इस हैंडीक्राफ्ट की वजह से दुनिया भर में इसने अपना नाम और शहरत जो है हासिल की है। किसने? कश्मीर ने। अमंग दीज हैंडीक्राफ्ट्स, इन हैंडीक्राफ्ट, सारे हैंडीक्राफ्ट्स में जैसे वुड कार्विंग है या बाकी चीज़ें हैं, इन हैंडीक्राफ्ट्स में एक सबसे मशहूर हैंडीक्राफ्ट जो है वो है कश्मीरी शॉल। जो कश्मीरी शॉल है आप देखते हो, पश्मीना यहाँ का, या कश्मीरी शॉल जो है दुनिया भर में फेमस है। A fine and a light wrapping that keeps you warm। अब हमें पता है शॉल किसको कहते हैं, तो अगर किसी को हमें समझाना है शॉल किससे कहते हैं, कहते हैं ये एक फाइन, एक अच्छे और लाइट और हल्के किस्म का ओढ़ने का, लपेटने का कपड़ा होता है। कीपिंग यू वार्म, जो आपको गर्म रखता है इन विंटर्स, विंटर में, एंड गिव एलिगेंस टू योर पर्सनैलिटी, और आपकी पर्सनैलिटी को ग्रेसफुल बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है। जब आप ये शॉल पहनते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी जो है चार चांद लगती है, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है, एलिगेंट हो जाती है, ग्रेसफुल हो जाती है। तो किस वजह से? इस शॉल की वजह से आपकी पर्सनैलिटी में इन्हांस होती है ब्यूटी, मोर ब्यूटी इन्हांस होती है। तो ये जो है सारा कुछ जो है, रैपिंग मीन्स लपेटना, तो शॉल की वजह से आपकी ब्यूटी जो है वो इन्हांस होती है। कश्मीर हैज़ प्रोड्यूसिंग शॉल्स फॉर सेंचुरीज नाउ। कश्मीर का ये बहुत पुराना, सेंचुरीज हो गए, बहुत साल हो गए, कश्मीर का जो ये हैंडीक्राफ्ट है शॉल्स का बहुत पहले से चलता आया है। जैसे कि फ्रैंक्स
बर्नियर वॉज द फर्स्ट यूरोपियन, फ्रैंक्स बर्नियर जो है पहला यूरोपियन है हु विजिटेड कश्मीर इन 1664, जो कश्मीर में 1664 में कश्मीर में आया, विजिट किया कश्मीर को, एंड हु रोट अबाउट द सॉफ्टनेस एंड डेलिकेसी ऑफ द लोकल फैब्रिक। ये यहाँ का शॉल जो है जब उसने ये ओढ़ा तो उसने देखा ये कितना सॉफ्ट है, ये कितना डेलिकेट है, डेलिकेट मीन्स ब्यूटीफुल, नज़ाकत इसकी कितनी है, कितना मुलायम है, कितना सॉफ्ट है, और ये कितनी गर्मी देता है, और कितना हल्का कपड़ा है और कितनी गर्मी देता है। ये लोकल फैब्रिक जो यहाँ का ये लोकल फैब्रिक है, लोकल कपड़ा जो है कश्मीर का, इसकी इस बर्नियर ने बहुत तारीफ़ की है। कब? 1664 में, जब उसने यहाँ पे आके इसको यूज़ किया और देखा। These shawls are woven on handlooms by men। तो ये शॉल जो है ये हैंडलूम्स, हैंड से बनाए जाते, लूम्स में, लूम हो गए जहाँ पे हम जैसे बड़े बड़ी ब्लैंकेट्स बनाते हैं, आज मशीन्स आते हैं, पहले लूम्स आते थे। तो आप गूगल पे सर्च करना लूम किस टाइप का होता था, तो वो जो है बहुत सारे मैन इसमें काम करते थे। ये एक किस्म की फैक्ट्री होती थी उस टाइम पे, कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ की होती थी, तो इससे वोवन करते थे इन शॉल्स को बाय मैन। ये कितना लगभग एंड आर अबाउट 2 मीटर्स लॉन्ग, ये लगभग 2 मीटर्स का लॉन्ग होता है, एंड 1.25 मीटर्स वाइड, और वाइड जो इसकी वाइडनेस होती है 1.25 मीटर्स होती है। बर्नियर टॉक्स अबाउट 2 टाइप्स ऑफ शॉल्स। बर्नियर ने अपनी बुक में लिखा है, उसने 2 टाइप्स ऑफ शॉल जो है उनके बारे में बात की है। वन मेड विद लोकल फाइन वूल, एक वो जो यहाँ के लोकल वूल जो होता है कश्मीर का, लोकल फाइन वूल होता है, उससे बनाते हैं, एंड अदर फ्रॉम द सॉफ्ट अंडर प्लीस हेयर्स ऑफ द ब्रेस्ट ऑफ द वाइल्ड गोट। और दूसरा जो होता है, दूसरा शॉल, वो गोट जो होती है, वाइल्ड गोट्स, आम गोट नहीं, वाइल्ड गोट जो होती है, उनके अंडर हेयर्स जो होते हैं, लंबे लंबे बाल जो उनके अंडर जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे, जिसको हम फ्लीस कहते हैं, छोटे हेयर्स होते हैं। जैसे आप देखते हो फर जिसको हम बोलते हैं, आपकी जैकेट के अंदर जो फर होता है उसको फ्लीस कहते हैं। तो लंबे लंबे बालों के अंदर जो फ्लीस, अंदर का जो फर होता है उनके, वाइल्ड गोट्स के, तो उनसे ये शॉल जो है ये बनता है, सेकंड फाइन शॉल। जो गोट होती है कोई आम गोट नहीं होती, इसको कील कहा जाता है, एक स्पेशल वाइल्ड गोट है। तो लेटर मच एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कीमती भी होती है, ये शॉल जो है बहुत ज़्यादा कीमती भी होती है। In winters, wild goats found in high altitudes of Tibet and Central Asia। विंटर में जो है ये गोट्स जो है हाई आल्टीट्यूड्स तिब्बत और सेंट्रल एशिया में होती है, पाई जाती है हाई आल्टीट्यूड्स पे। ग्रो ए लेयर ऑफ सॉफ्ट हेयर अंडर दियर नॉर्मल कोर्स हेयर। तो कहते हैं ये जब विंटर इन हाई आल्टीट्यूड्स पे जाती है, इनके नेचुरली ग्रो हो जाते हेयर्स, इनकी जो इनकी स्किन होती है उस पर एक सॉफ्ट हेयर जो है, वो इस लंबे हेयर जो होते हैं, नॉर्मल हेयर जो इनके लंबे लंबे होते हैं, कोर्स हेयर्स, मोटे मोटे हेयर जो होते हैं लंबे, जो आप देखते हो गोट्स के ऊपर जो होती है उनका वो लंबे लंबे बाल होते हैं, इनके अंदर से इनको नॉर्मली एक सॉफ्ट छोटे छोटे हेयर्स जो है वो डेवलप होते हैं विंटर्स में। दिस कीप्स देम सर्वाइव इन कोल्ड एंड हाई आल्टीट्यूड्स। ये जो बाल होते हैं बहुत गर्म होते हैं, इनकी वजह से ये हाई आल्टीट्यूड्स पे जो है ये इनको ठंडी से बचाते हैं। वन स्प्रिंग कम्स, जब मौसम बाहर आ जाता है, स्प्रिंग आ जाती है, दीज गोट्स शेड ऑफ दियर एक्स्ट्रा लेयर रबिंग दियर बॉडी अगेंस्ट बुश एंड रॉक्स। तो ये गोट्स जब बाहर आ जाती है, इनको ज़्यादा गर्मी लगती है, तो नेचुरली बाय नेचर इनको टीच किया नेचर ने कि ये अपनी इस बॉडी को रब करते हैं, अपने बॉडी को रब करते हैं, घसीटते हैं, किसके साथ? बुशेस, झाड़ियों के साथ, अगेंस्ट द बुशेस एंड रॉक, झाड़ियों और बड़े बड़े पत्थरों, इन चट्टानों के साथ अपनी बॉडी को रब करते हैं। एंड दे शेड द एक्स्ट्रा, दे शेड दिस फ्लीस, दे शेड द एक्स्ट्रा हेयर्स। ये जो एक्स्ट्रा जिनकी वजह से इनको हेल्प मिलती थी विंटर्स में, ये उन एक्स्ट्रा हेयर्स को जो है अपनी बॉडी से रब करके इस एक्स्ट्रा लेयर को जो है वो शेड करते हैं, शेड मीन्स निकालते हैं। नाउ तो उन्हीं फ्लीस से वो कलेक्ट करके ये फार्मर्स जो है कलेक्ट करते हैं, ये शेफर्ड्स, तो उसी से ये शॉल्स बनते हैं। ये बहुत कम तादाद में मिलते हैं और बहुत महंगे होते हैं। नाउ देयर आर फार्मर्स वेयर
द गोट्स आर रियर्ड एंड वूल इज़ कलेक्ट। अब जो है टेक्नोलॉजी बढ़ गई और इनकी डिमांड जो है शॉल्स की इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो अब जो है फार्मर्स जो है वो खोली गई जहाँ पे इन मवेशियों को पाला जाता है। रियर मीन्स पालना, रियर्ड मीन्स पालना तो इन मवेशियों को, इन गोट्स को जो है वो पाला जाता है। द लोकल पीपल गैदर द फ्लीस कॉल्ड फम इन कश्मीर। लोकल यहाँ के लोग जो है वो इस फ्लीस को कलेक्ट करते हैं, इस फर को कलेक्ट करते हैं, जिसको ये फम कहते हैं कश्मीरी में, एंड सेल इट इन कश्मीर वैली। और हम यहाँ पे इसको बेचते हैं। विंटर्स में हमें इससे बहुत सारे शॉल्स जो है उनका यूज़ करते हैं। वी हैव ना फार्मर्स इन द किल गोट्स आर रियर्ड। अब इन किल गोट्स, वाइल्ड गोट्स के लिए भी जो है फार्मर्स बनाई गई है, इनको पाला गया, पालते हैं वहाँ पर। एंड द वूल इज़ कलेक्टेड ऑन लार्ज स्केल। और उनसे जो है वूल जो है वो निकाला जाता है बहुत तादाद में, क्योंकि इन शॉल्स की बहुत डिमांड है। और इन शॉल्स को फिर हम फॉरेन मार्केट्स में जो है अच्छी प्राइस पे जो है फिर बेचते हैं। इन कश्मीर द अदर एरियाज़ लोकल गोट्स आल्सो प्रोड्यूस वूल। कश्मीर में जो बाकी एरियाज़ में लोकल गोट्स जो होती है, यहाँ के आम गोट्स, उनसे भी जो है वूल हम हासिल करते हैं। एंड कॉम टू रिमूव इट, और उनको कॉम करते हैं, उससे वो वूल जो है निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है। बट द शॉल्स मेड फ्राम द वूल आर इन्फीरियर इन क्वालिटी। लेकिन इन आम जो गोट्स होती है, हमें रियर जिनको करते हैं, उनका जो ये वूल होता है वो इन्फीरियर होता है। वो उतना सॉफ्ट, उतना डेलिकेट नहीं होता है जितना किल गोट्स का होता है। टू दोज मेड फ्राम द वूल गॉट फ्राम द वाइल्ड गोट। जो वूल हम वाइल्ड गोट से कलेक्ट करते हैं, उसके बरक्स अगर हम देखेंगे लोकल गोट्स का वूल, वो उतना डेलिकेट, उसमें उतनी जो है सॉफ्टनेस नहीं पाई जाती, उतनी डेलिकेसी नहीं, उतना डेलिकेट नहीं होता है। तो इस तरह से जो ज़्यादातर डिमांड जो होती है और महंगा जो होता है वो होता है वाइल्ड गोट का वूट। जो किल गोट्स का वूट हो, फ्लीस होती है, वो ज़्यादा महंगी होती है, और उससे ही हम बाकी जो है शॉल जो है वो बनाते हैं। तो इस तरह से लोकल क्वालिटी जो होती है, लोकल वूल, वो थोड़ा सा इन्फीरियर होता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये 2 पैराग्राफ्स पढ़ाया। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। आप इसकी रीडिंग करेंगे और साथ साथ जो मैंने आपको जिस तरह से पढ़ाया आप देखेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अपने जो है इस लेसन को आप से स्टार्ट कीजिए प्रिपेयर करना। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।